I was telling in the morning, that we are having, broadly speaking, two major aspects of communication, as verbal as well as non-verbal. In verbal communication, we are having listening, speaking, reading, writing, which we have covered largely. But as I said in the morning, 93% of communication takes place through non-verbal modes, whereby you are not making use of any words, but you are communicating anybody through other than your words, non-verbal modes. And to engage the session on non-verbal communication, we are having with us my colleague, Dr. S.P. Bedi, who will be engaging the session with you. She has more than 30 years of teaching and research experience, and she's working in this institute since 1984. She has to her credit more than 50 papers and attended more than 25 conferences at the national and international level. She has also handled independently and as a member of team the research projects of about 18 research studies. Her area of specialization is evaluation and teaching technology and communication. She has also done some studies with the help of students and given theses to the students on the topics of soft skills. Basically, she is MSc chemistry and did her PhD, the doctorate studies in the area of education. Dr. S.P. Bedi is presently professor in the Department of Education and Education Management at this institute. And now, without wasting any further time, I request my colleague, Dr. S.P. Bedi, to kindly engage the session on non-verbal communication. Thank you, Singhaji, for the kind words. As shared by Singlaji, in this session we are going to talk about non-verbal communication. First of all, I welcome all the faculty at various centers: Sunrise Group of Institutions, Udaipur; Manda Institute of Technology, Bikaner; University of Jammu, and Chandigarh University. So the non-verbal communication, obviously not covered under the verbal. There is something. So no more than, you'll be surprised to know that no more than 30 to 35% of the meaning is carried entirely by words. Non-verbal communication, now what the SPICE work it is doing, SPICE adds, subtracts, and amends the messages. You will see that I will be giving you, citing you certain examples in this respect, how this type of thing is happening. So non-verbal communication is the word beyond the words, beyond verbal communication. You just go through these lines. You cannot not communicate. Means even if you want that you don't want to communicate, आप कहते हैं हम तो चुप रहेंगे, भाई आपकी चुप्पी भी तो बोल रही है. So rightly said about the non-verbal communication, you cannot not communicate. अब देखिए how you communicate then, your body movement communicate. आप nervous होते हैं कैसे चलते हैं, बोलो कुछ भी नहीं nervous हो, right? But your ways of moving will tell you. Personal space आपका क्या है, touch, ठीक है. आप करो शाबाश और जोर से लगा दो तो वो शाबाश होगी नहीं. So touch, everything is having its influence. Voice, we will see how these things change the meaning of even the verbal communication. Environment क्या है, tense environment है, आपका face बदल जाएगा, face के expressions बदल जाएंगे. Artifacts क्या है, physical characteristics क्या है. So we say that we cannot not communicate. So it's according to Susan Bixler, he was president of Professional Image in Business Situations. Body language always, I underline it, wins out over verbal communication. So आप कहना कुछ चाहते हो, convey कुछ हो जाता है if you are not careful about non-verbal communication. And you will see that most of the time
We are more careful for the verbal communication, but we are not that much careful about the non-verbal communication. So as Mr. Singla remarked in the opening sentence that 93% coming from the non-verbal. फेशियल एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा. आप कहते हो कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, वर्ड्स तो वही थे ना, वर्बल तो वही था, आपके फेस की उदासी जो है उसने सब कुछ कन्वे कर दिया जो आपकी वर्बल 7% को ओवर पावर कर गई. सो टोन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, they communicate more than your words. Non-verbal messages कैसे हैं, but we are going to type of first of all, this is present in all communication, right? चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप anybody with anybody anywhere you are communicating, your non-verbal communication will always be sending some messages, maybe intentional or unintentional. Let me take your help in this regard. Intentional तो हम समझ सकते हैं, ठीक है ना. इंटेंशनल आप कहते हैं यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब, ठीक है, तो इट्स इंटेंशनल कि मैंने स्माइल भी लाई एंड वॉइस में वो क्वालिटी भी लेके आई, विच रियली शोज दैट इंटेंशनली आई रियली फ्रॉम माय कोर ऑफ हार्ट आई वांट टू एक्सप्रेस सर्टेन थिंग्स. बट लेट मी नो फ्रॉम यू, व्हाट अबाउट अनइंटेंशनल? हैव यू एवर कम अक्रॉस, मे बी आपको अपना तो अनइंटेंशनल पता नहीं चलेगा, या हो सकता है आप अपना भी सेल्फ एनालिसिस करके देखें, एंड जस्ट टेल मी any of the unintentional non-verbal communication which has gone from your end, any example in your life. आप चाहे पर्सनल लाइफ का ले लो, चाहे आप टीचिंग लाइफ का ले लो. टीचिंग का लो तो बहुत अच्छा है, बट इफ यू can't come across the teaching one, then you can take the other one also. So let me start first of all the Udaipur group, Sunrise Group of Institutions, Udaipur. Any person will like to share where unintentional communication has peeped in your verbal messages. Unintentional का मतलब तो समझते हैं ना, आप चाहते नहीं हैं पर कह गए आप, right? You don't have control on that. Sorry. हाँ जी, anybody from the center at Udaipur? उदयपुर का कोई पर्सन who would like to communicate, cite some example on this? नहीं. Okay. I don't find many people there. Okay. I go to MIT Bikaner. MIT Bikaner. Will you like to share any of your experience regarding unintentional communication? हाँ जी, कभी unintentional? Ma'am, there are many, but right now we are not able to recall any specific one. Okay. I understand. Times difficult to recall also. Okay. Let me come to University of Jammu. University of Jammu. हाँ जी, कोई आप यहाँ पर तो काफी लोग बैठे हैं भाई. Anybody who would like to share experience of unintentional non-verbal message? Yes? Anybody can interact on this? No? I move to the last one. Chandigarh University. Can I hear from here? Ma'am, intentional means if we are trying to do something that we get the intention from the other one. Like if someone is ignoring me, I will be there. I will be shocked slightly. I am here. They will be the intentional.
ओके, जो नहीं इंटेंशनल का तो ठीक है, इंटेंशनल तो जान के इग्नोर कर रहा है ना, तो वो तो इंटेंशनल है, वो जान के आपको नहीं नजर मिलाना चाहता आपसे। हाँ जी। इट्स द क्वेश्चन ऑफ अनइंटेंशन, मतलब ये है कि आप सोचते नहीं है कि आपने कोई जेस्चर कुछ किया एंड दैट हैज कम्युनिकेटेड सम अदर मीनिंग टू द अदर पर्सन। लेट मी गिव मी ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स, in one of the sessions I just did this thing, बाल आगे आए मैंने ऐसे पीछे कर दिए, एंड माय टीचर इमीडिएटली कॉट मी, शी सेड ओके खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्या बात, हाँ जी बताएं। शी सेड कि आपने जो मैंने पढ़ाया उसको कंट्राडिक्ट क्यों करने की कोशिश की है, आपने ना वाला सिर क्यों हिलाया है। So from my side the gesture was with some other aim, पर जो कन्वे था अनइंटेंशनली उसने किसी चीज को, उस चीज को कन्वे डिफरेंटली कर दिया। कई बार होता है कि दूसरे की परसेप्शन भी अफेक्ट करती है, राइट। सो these are some of in the ways of how the non-verbal messages goes. May contradict verbal message, इसका तो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, and might have been discussed by my other colleagues while talking of the speaking skills or the verbal communication. मैंने कहा ना वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, तो बदल गया ना मीनिंग उसका। खुशी तो नहीं है, पर वर्ड्स जो है वो कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस, तो दे आर कंट्राडिक्टिंग my the voice quality is contradicting what I am conveying through my verbal message. May reinforce verbal message, ये तो आप बता सकते हैं, ये फिर मैं आपसे पूछती हूँ, आपका वर्बल मैसेज रीइंफोर्स किस तरह करता है। लेट मी कम टू MIT बीकानेर, MIT बीकानेर, हाँ जी, ये तो आपके लिए आसान होगा कि जब नॉन वर्बल मैसेज वर्बल को रीइंफोर्स कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। एनी एग्जांपल? अरे भाई इसके तो एग्जांपल्स बहुत आने चाहिए। मैंने अभी बताया कांग्रेचुलेशंस कंट्राडिक्ट कर रहा है, आप इसी को करो कि रीइंफोर्स करे। ओके, स्मॉल थिंग फॉर यू। यस, आपने किसी को कांग्रेचुलेशंस कहना तो कैसे कहेंगे, इससे नॉन वर्बली भी वही चीज कम्युनिकेट हो। ओके, लेट मी गो टू देन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। हाँ जी, have you listened to the question when I was interacting with the Bikaner group? हाँ जी, congratulations को और any other example. And let me know the first your name please. नाम क्या है आपका? हाँ, Good morning, ma'am. good morning. This is Riddhi Sharma from University of Jammu. Could you please repeat your message, your question? Point was, we just said non-verbal message can contradict. ठीक है, आप वर्बली तो किसी को बधाई दे रहे हो, पर नॉन वर्बली आप इतने खुश नहीं हो, आपके पास फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, वॉइस की क्वालिटी ऐसी है which is conveying something else, right? अब मैं इसका दूसरा लेके चलती हूँ, that is reinforcing what you are saying. So you can take any example from your classroom teaching also. Through proper body language, you can reinforce what you are communicating verbally. Like if I'm meeting someone, I will have a positive body language, a happy face. Okay. My eyes are shining. Then I can communicate that I am really happy to see that person. अब हैप्पी टू कह दिया ना, ठीक है, तो हम जो है ना, हम जो कर रहे हैं, हम जो वर्बली बोल रहे हैं उसको नॉन वर्बली रीइंफोर्स करना चाहते हैं। से आपने कहा, मैं कहती हूँ वाह मैडम शर्मा,
आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल दे दिया। अब ये जो था ना, वाह, ये और मेरे हाथ, फेस पे एक्सप्रेशन, प्लेजेंट, ये सारा रीइंफोर्स कर रहा है कि जो आपने किया, वाह, वंडरफुल काम किया है। तो जो जो आपका नॉन, अगर मैं ऐसे ही कहूँ, हाँ शर्मा अच्छा किया, बात बदल गई ना। तो जब मैं कहती हूँ हाँ जी शर्मा जी, मैडम शर्मा आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, कोई जोश नहीं है। जो जोश है ना पैरा लैंग्वेज का, वो नॉन वर्बल देता है, राइट? सो कैन योर नॉन वर्बल कैन reinforce the same thing, can contradict the same thing. This depends on the total environment also. अगर साथ आसपास का environment ठीक नहीं है तो भी थोड़ा expressions और सब कुछ बदल जाता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स तो होंगे ही, जब तो साथ चलेगा, मींस रीइंफोर्स कर रहा है, तो सबको अच्छा लगेगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है तो उसने कांग्रेचुलेशंस कहा तो था, पर लगता नहीं था कि वो खुश था। ये जो लगता नहीं था ना, वो नेगेटिव इफेक्ट दे गया है उसी कम्युनिकेशन का। सो दीज थिंग्स कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। आप एक चांटा लगाते हो और आई एम सॉरी, दैट्स नॉट अलाउड एनीवेयर नाउ, बट जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, and that's not a verbal type of communication. Okay, now we come how this I will cite some examples of non-verbal communication for if you are sitting in the interview, but more will be focused as a teacher. As a teacher, what type of things as with regard to non-verbal communication you should take care of. So this non-verbal communication, how the teacher behaves and how the teacher's body language, facial expressions, everything, that projects a type of professional image which is required of the teacher. Let's just see how it does. First is confidence. आप ऐसे खड़े हैं तो वो confidence वाली बात नहीं आती है, slump करते हो पोडियम पे। आप straight खड़े हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस झलकता है। आपकी आवाज की क्वालिटी से भी कॉन्फिडेंस झलकता है। वॉइस शांत है, हम तो गुस्सा, फेस पे गुस्सा, आंखों में गुस्सा, तो वो वॉइस वाली इमेज नहीं देगा जो कि टीचर में होनी चाहिए है। देन असर्ट करना। अब देखो, असर्टिवनेस एंड अग्रेसिवनेस पास से गुजर जाते हैं। वर्ड सेम हो, असर्टिव वे से कहे जाए, दे गिव डिफरेंट मीनिंग। वही चीज आप अग्रेसिव वे से कह देते हो, दैट गिव्स डिफरेंट। तो जो टीचर का जो जेस्चर है, पैरा लैंग्वेज है, दैट शुड शो दैट द टीचर हैज अ ज़ील, दैट द टीचर ही और शी इज asserting and is not aggressive. So these are some of the things which help in creating a teacher's professional type of image. So let's take one by one different types of non-verbal communications. One is the kinesics. So under this we will be discussing two things: what should be the posture and what type of gestures teachers should have. Tell us about tension. अब देखो, अगर आप रिलैक्स्ड हैं, आप और तरह से खड़े होते हैं, और जब आप टेंशन में हैं, अच्छे मूड में नहीं है, then it's reflected through your posture and your gesture. So they sometimes substituted for words. So पहले हम posture लेते हैं. Posture is standing erect, conveys your confident and experience positive emotion. मैंने जब professional image of the teacher की बात की, there also I talked about posture only. अगर आप ढीले से ऐसे खड़े हुए हैं, झुक के पढ़ा रहे हैं, that's not a type of confident posture for teaching, right? So you have to take care how you stand in the class. आपके पास अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 60 आईज आपको वॉच कर रही हैं कि आप कैसे खड़े हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है और क्या आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। When draped over a podium with shoulders sagging, you give the feeling of depression or lack of control. अरे भाई मर गए, क्या है लाइफ में, lack of control, मजा नहीं है। So ज़ील जो है ना, अगर आप पोडियम पे झुक के पढ़ाते हैं, आपके shoulders झुके हुए हैं, that doesn't give a confident type of picture. So your posture in the class should be erect.
अब कई बार क्या होता है कि हम लोगों में, किसी भी टीचर में ये जो आदत है, ये इसलिए नहीं कि उसको मीन्स वो ऐसे क्यों कर रहा है, बिकॉज ही हैज दैट पर्सन इज ग्रोन अप इन द कंपनी ऑफ पीपल हु स्लम। अब क्या होता है, जब आप सबको आसपास देखते हो कि स्लम करते हैं, तो आप कहते हो कि हम भी स्लम करते हैं, ये चीज ठीक है। तो if you happen to have that type of habit because you observed your other teachers or maybe some colleagues like that जो स्लम करते हैं, then please stop it here itself। कोई आपको बताने नहीं जाएगा कि आप ये चीज ठीक नहीं कर रहे हैं। So take care of yourself। So posture of the teacher, जो effective teachers हैं, they are more relaxed। चाहे रिलैक्सेशन जो है ना, वो थोड़ी आपके कॉन्फिडेंस, अगर आप सब्जेक्ट मैटर सही आता है तो भी वहां से आती है, बेसिस में भी नहीं, पर इफेक्टिव टीचर इज मोर रिलैक्स्ड देन द इनफेक्टिव। इनफेक्टिव टीचर के फेस पे हर वक्त ऐसे एक्सप्रेशंस रहेंगे कि जैसे वो टेंशन में है, परेशान है वो, ठीक है, वो रिजिड है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो चीजें हैं वो आपके पोस्चर्स में आ जाती हैं। So take care of this type of things if you happen to be having such type of postures which convey that you are not a relaxed type of teacher, you are not a confident type of teacher. Take care of this thing. Then they say slump or slouch. The first teacher is showing slump and slouch. कई बार होता है, जैसे आप मान लो स्टूडेंट आपका इंटरव्यू में बैठता है, ठीक है, एक तो है कि अकड़ के पीछे कुर्सी पे लग के बैठ गए, एक होता है कि बिल्कुल कुर्सी के आगे बैठ गए, गिरे के गिरे ना, जो आगे जाके आप बिल्कुल आगे जाके जब बैठ जाते हैं, बहुत वो कर सीधे अकड़ के बैठ जाते हैं, दैट शोज कि आप जो इफ यू आर इन द इंटरव्यू और इवन इन द क्लास, इट मींस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। और हो सकता है इंटरव्यू में बैठते हुए अगर आप आगे बैठ जाते हो, तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको हमेशा ये लगेगा कि आप चले के चले, आप चाहते हैं कब खत्म और भाग जाऊं मैं यहाँ से। सो दैट्स नॉट ए राइट टाइप ऑफ पोस्चर। द थर्ड वन इज द राइट वन, जहाँ पे आप फेस पे कुछ स्माइल है और बैठिए बिल्कुल सही तरीके से हैं, प्रॉपर, एक पीछे से भी आप देखो गैप आ रहा है, और बैठने का तरीका भी बिल्कुल आगे घूम के नहीं बैठे हुए हैं। सो दिस इज राइट टाइप ऑफ पोस्चर इफ यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू से। ओके, सॉरी। Then we come to the gestures. Gestures can be used to reinforce what teacher says in the class. Let me have your views on this. आप gestures करते हैं या सीधे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल attention. हाँ, let me hear from you first. I start with Chandigarh University. हाँ जी। Yes. आप जब पढ़ाते हैं तो जेस्चर्स किस तरह से यूज करते हैं? कोई एक जस्ट एक लाइन बोल के जेस्चर वाली बता दो। जेस्चर्स किस तरह करते हैं जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं? Ma'am, it depends on the topics, how we are teaching the students. वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जब कह दिया ना हाउ वी आर टीचिंग, तो ये जेस्चर ही था। मैंने यही देखना था कि आपने जो सेंटेंस बोला है उसके साथ अगर जेस्चर है तो इसका मतलब वो जो जेस्चर है वैसा कुछ जेस्चर आप क्लास में भी लेके जा रही हैं। सो दैट्स ए गुड थिंग। आपका नाम क्या है? गुरप्रीत। गुरप्रीत। तो आपने गुरप्रीत बहुत सही डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। नाउ एक्शन ऑफ गैदरिंग अप। अब आप देखो, अगर आपके क्लास के स्टूडेंट्स किताबें बंद करनी शुरू कर देते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जेस्चर क्या बता रहा है आपको? क्या बता रहा है आपको? सर जी बैठ होने वाली है, बंद कर दो लेक्चर, ठीक है। सो व्हेन यू आर पैकिंग अप थिंग्स नॉन वर्बली, दे आर कम्युनिकेटिंग कि भाई लेक्चर टाइम हो गया, आपको तो पता नहीं चलता पढ़ाते हुए, हमें पता चल चुका है। एंड लाइकवाइज व्हेन द स्टूडेंट, व्हेन द कैंडिडेट इज इन द इंटरव्यू और वो अपना सामान इकट्ठा करके अपने पास कर लेता है, तो what signal it is giving to the others? पैनलिस्ट को क्या बता रहा है कि भी सर जी बहुत हो गई इंटरव्यू, अब चलते हैं। So these type of things they convey. So you have to be very careful
about such things. अब as a teacher, सबसे पहले you have to vary the gestures. वेरी जेस्चर्स मतलब कईयों को आदत होती है एक टाइप का, बस ऐसे ऐसे ही करते रहना है. नो, वेरी योर जेस्चर्स एज पर द नीड. जैसे गुरप्रीत ने बिल्कुल सही कहा, मैंने कहा जेस्चर्स बताओ, कहते हैं हम एज पर नीड चलते हैं. दैट्स ए वेरी राइट टाइप ऑफ थिंग. सो वेरी योर जेस्चर्स एंड टू एम्फसाइज ए पॉइंट. और एक जेस्चर नहीं होता कभी भी उसके लिए. देन अवॉइड कंटिन्यूअस जेस्चर्स. कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इक्वली अप्लाई होती है. अब आप जब ऐसे ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे आप डिफरेंट जेस्चर्स हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो आपके फेस के आगे हर वक्त क्या आ रही हैं, हाथ नाच रहे हैं. सो दैट टू शुड नॉट बी देयर, कि कंटिन्यूअसली नहीं करने हैं, बीच में जहां पे जरूरत है उन पे भी कुछ गैप होना चाहिए. वॉच टाइमिंग. टाइमिंग का मतलब है दे शुड accompany the oral thought and not proceed or follow it. जैसे मैं जस्ट कहती हूँ, इट वॉज ए बिग थिंग, ठीक है, अब मैं कहती हूँ इट हैज नॉट गॉन साइड बाई साइड. मैं कहती हूँ इट वॉज ए बिग थिंग. नो, सो इट वॉज ए बिग थिंग, इट शुड गो साइमल्टेनियसली. अडेप्ट जेस्चर्स टू द सिचुएशन. मान लो क्लास तो है 100 की और आपका जेस्चर इतना सा है, बिग थिंग, तो 100 की क्लास को कहाँ दिखेगा. सो अडेप्ट टू द situations. If there is large audience would not see a small gesture, adapt the size to that group also. So these are some of the points which any teacher should take care for using gestures. There are certain distracting gestures. कोई बताएगा distracting gestures क्या होते हैं? एग्जाम्पल में एक हिंट आ गया है टॉपिक के ऊपर ही. एनीबॉडी आपने किसी के साथ कभी भी जब आप बात कर रहे हैं, हो सकता है आप टीचिंग के वक्त ऐसा जेस्चर अपना ना पहचान पाए, पर मान लो आप दूसरों के जेस्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, कभी किसी से बातचीत करते हुए आपको लगा कि ये जो चीज है ना, दिस इज होनी नहीं चाहिए, क्या कर रहा है पर्सन बार बार, देखा कभी कुछ ऐसा? If someone is yawning, ओके, बार बार यॉर्निंग करता है, इसका मतलब तो ये है कि डिसइंटरेस्टेड है. एनी अदर गुड अटेम्प्ट? और looking at the mobile in the class. Huh? Looking at the mobile in the class. Looking at the mobile in the class again and again, right? वो भी गलत है. ओके, आपने कई बार देखा होगा, इफ आई से कम टू बॉयज फर्स्ट, बार बार टाई ठीक करते हैं, आप थोड़ी देर बाद टाई ठीक हो गई, ठीक है. कईयों को आदत होती है, आई रिमेम्बर देयर वाज वन ऑफ आवर कोलीग्स हियर ओनली, वो बार बार ऐसे करते थे बाल को, राइट. दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग टू यू. क्या बार बार ये क्या कर रहे हैं, बार बार आप चेन को हाथ लगाते हैं. ऑल दीज आर, कईयों को आदत है पेन खटकाते रहते हैं, टिक 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 टिक, खाली नहीं बैठना है. हाथ में चाक आ गया तो चाक घुमाते रहेंगे. सो टेक केयर रिपीटिंग टू ऑफन एनीथिंग. मैं अगर बार बार गला भी साफ करती हूँ ना, इवन दैट इट्स नॉट राइट टाइप, दिस डिस्ट्रैक्टिंग. फिजिटिंग, ठीक है, आप फिजिटिंग कब करते हैं? फिजिटिंग कब करते हैं? फिजिटिंग क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा, जब आप नए, आप वो दिन याद करो जब आपने नया बिल्कुल, शायद मे भी आपका पहला लेक्चर था. कई टीचर्स होंगे जो पहला लेक्चर बिना, मैं कहूंगी सांस तो लिया होगा, पर बिना बिल्कुल भी कोई मूवमेंट किए बिना, कोई जेस्चर किए बिना पूरा लेक्चर उगल आए. देयर विल बी सम टीचर्स जो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, इधर चले गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर चले गए. ये क्या बता रहा है? नर्वस है, कंटेंट आता है फिर भी नर्वस है. तो ये इस तरह के स्मॉल मूवमेंट्स, प्लेइंग विद हियर, मैं आई जस्ट सेड दिस थिंग, प्लेइंग विद मनी. हाथ में कार की चाबी है तो कार की चाबी घुमाते रहो हर वक्त. पैसे हैं उनको घुमाते रहो, पेपर वेट है उसको घुमाते रहो. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर डिस्ट्रैक्टिंग. इफ यू हैव
if you have, I would say, such type of things, then take care not to do it. Analysis आप खुद कर लीजिए उसका. You know better. Body movements, hand, arm and body movements can reveal openness, suspicion, honesty, confidence, nervousness and defensiveness. हम कुछ लेके चलते हैं. बॉडी मूवमेंट से नर्वसनेस कैसे पता चलती है? हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम एनी सेंटर? बॉडी मूवमेंट से नर्वसनेस कैसे पता चलती है? मैंने अभी एग्जांपल दिया उसका. Small steps. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आप इधर उधर बार बार घूमते हैं, हिलते हैं, इसका मतलब है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट होते तो आप आराम से खड़े होकर पढ़ाएंगे ना, नर्वस नहीं होंगे. तो आपका जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, दे स्पीक ऑफ वेदर यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर नर्वस. Teacher who slouches, I already made a mention of this, slouches or twitches when talking to students is not perceived as a confident person. जो ऐसा आप झुक के पढ़ाते हो, हाँ, पोडियम के ऊपर ही बस बिल्कुल लेट गए पोडियम पे ही, तो वो जो चीजें हैं that shows that the person is not confident. चाहे उसको नॉलेज कितनी भी आए, but उसका जो नॉन वर्बल बिहेवियर है that is communicating something else. Then we have arms. हमने देखा होगा कई लोग बड़े अकड़ के खड़े हैं. अभी कोई वैसे आगे कोई बात ना करे. अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछना और आप खड़े हैं ऐसे, तो क्या है, कोई पूछेगा? अग्रेसिव पोजीशन पे खड़े हैं और आप ऐसे खड़े हैं बड़े अकड़ के गुस्से में, एंगर. मेरी अथॉरिटी है, मेरी क्लास है, पूछ के बताओ, हिल के बताओ मेरी क्लास में. तो स्टूडेंट कहेगा कि सारी वक्त टेंशन रहेगी कि कब ये टीचर का खत्म हो क्लास, कब हमारी जान में जान है. रिलैक्स टाइप ऑफ पोस्चर जो हैं, आर्म्स के बॉडी मूवमेंट्स. एक हाथ कुछ एक हाथ रखो, दूसरा तो उनका बिजी रहता है. हाँ जी सॉरी. ना बट इसका मीनिंग तो होता ही होगा. थोड़ा आपको रिपीट करना पड़ेगा, सॉरी. हाँ जी, ओके. डू यू वांट टू शेयर विद अदर्स? कौन सा ग्रुप था? हाँ जी, उदयपुर ग्रुप. डू यू वांट टू शेयर विद एनीबॉडी एनीथिंग? नो भाई. देखिए, what do you want to ask? There was some noise from some center, so I thought that they want to interact on some issue, so I just checked it. Okay, so then comes the फेसेस है, फेस एंड आईज. मुझे लगता है ये तो आप ही बता देंगे कि फेस एंड आईज कितना बोलते हैं. लेट मी जस्ट शो. फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, आई कांटेक्ट, स्माइल्स, फ्राउन्स. आईज जो हैं, दे आर विंडोज टू द सोल. कहते हैं ना, आप कुछ नहीं भी कहना चाहते हैं ना, आईज बोल देती हैं. आईज कुछ छुपाती नहीं है. आप में डर है, प्यार है, सब कुछ आंखों में देना पड़ता है. अब बहुत खुश है और एक अजीब सी एक चमक है, वो चमक दूसरे पर्सन को बता देती है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है. सो लेट्स जस्ट सी सम ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस. आप देखेंगे ये बहुत कुछ बोलते हैं. हमने कहा था ना, आप कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोलते हैं. सो ये देखो कितना बोल रहे हैं. Let us see some more of these expressions. जब आपको खुशी होती है तो आपके दांत दिखाई देते हैं, खूब खुश है आप, क्या कहना. जब डर लगता है तो दांत भींच जाते हैं. गुस्सा है तो होंठ दब जाते हैं. हैरानी है तो ये क्या हो गया, माय गॉड. सो ये सब चीजें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में आ जाती हैं. सो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कितना एंथुसियाज्म है. आप पढ़ा तो रहे हैं लैपलेस थ्योरम और फेस पे है, फेस और वॉइस आपके उसके साथ नहीं जा रहे. दिस इज इक्वल टू F इज इक्वल टू MA. दिस इज दिस लॉ. ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? वही, चाहे
खुशी चाहे गम एक ही जैसे रहते हैं, तो आपका कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, so you are nothing than good teacher. So all the teachers who bury their आजकल तो मैंने देखा है कई कॉलेजेस में, आई डोंट नो वेदर इन दीज 4 इंस्टीट्यूशंस यू हैव दिस प्रैक्टिस और नॉट, बट मैंने देखा है इन नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस टीचर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग पावर पॉइंट्स, और कहते हैं पावर पॉइंट से पढ़ के बोल देते हैं, दैट्स ऑल, ना एक्सप्रेशन ना जेस्चर, कुछ भी नहीं. सो कम आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ हैबिट. सिर्फ अपनी स्क्रीन से पढ़ना ही नहीं चलता, और जब स्क्रीन से पढ़ोगे तो करोगे क्या, आपकी तो पीठ हो जाएगी. I am going to give one small exercise, right? आप में से कोई किसी भी सेंटर का who can volunteer to display one small a type of exercise to the others. कौन करेगा, कहाँ से कोई, anybody can volunteer for this? हाँ जी, कौन आ रहा है आगे? मोनिका जी, बाकी लोग देख सकेंगे ना जो एक सेंटर पे होगा? ओके, हाँ जी, आप वॉलंटियर करते हैं? कौन करेगा वॉलंटियर? छोटी सी एक्सरसाइज है 1 मिनट की. हाँ जी, कौन सा है? मैम उदयपुर सेंटर. उदयपुर सेंटर, वेरी गुड. आपने क्या करना है, कोई एक लाइन सोच लो किसी अपने सब्जेक्ट की, जनरल कोई बात नहीं, आपने बोलनी है. जस्ट थिंक ऑफ दैट. आई एम सॉरी, आपके पीछे क्लास में कुछ ज्यादा लोग है नहीं है. मैम एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दे हैव देयर क्लासेस सो दे आर आउट इन द लेक्चर रूम. ऐसे करो, जो आपके साथी हैं, आपका नाम क्या है? संदीप मेहता. संदीप. और आपके साथी का नाम क्या है? जयप्रकाश शर्मा. जयप्रकाश. हाँ जी, ठीक कहा मैंने. आपका नाम संदीप है ना? हाँ जी. संदीप जी, ऐसे करिए, उधर जयप्रकाश जी आप पीछे चले जाएं. आप पीछे चले जाएं. ये जो ऑडियंस, संदीप, आपने जो एक लाइन सोची थी वो जयप्रकाश को बिना दिखे बोलिएगा. जेस्चर्स भी करें, फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छा रखें, जस्ट स्पीक दैट लाइन. आपको और टाइम चाहिए? This type of thing can be thought of by some any other center also. The person who would like to volunteer, they can. हाँ जी, संदीप जी बोलिए लाइन वो. a thing of joy is a beauty forever. ओके. जयप्रकाश जी, आपको कैसे लगा इनका बोलना? इन्होंने आपकी और पीठ की हुई है, तो आपको कैसे लगा? हाँ, you can't understand. क्या मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, इनकी नहीं कर पाए? सर के जो एक्सप्रेशन है वो I can't get. नहीं, आपकी आवाज नहीं क्लियर है, थोड़ा फिर से बोलेंगे माइक के पास जाके? मैम इनको मेरे एक्सप्रेशन नजर नहीं आया क्योंकि मेरी पीठ इनकी तरफ है. जान के किया था मैंने कि जब आई कांटेक्ट नहीं होता, हाउ अनकंफर्टेबल यू फील अबाउट दैट. वो अनकंफर्टेबल जो आता है ना, अनकंफर्ट, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको. द पर्सन हु, इफ यू आर नॉट हैविंग, अब आप देखिएगा, बैठिए आप संदीप प्लीज. एनी अदर सेंटर हु विल लाइक टू हैव such type of demo with the others. Point is, आप as teacher अगर आई कांटेक्ट नहीं रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो that shows you are not confident. आपकी तरफ से वो मैसेज है that you are not confident. स्टूडेंट को क्या हुआ? स्टूडेंट भी अनकंफर्टेबल है कि टीचर किसको देख के पढ़ा रहा है. अब ये जो चीज आएगी, आप यू माइट हैव ऑब्जर्व, स्टूडेंट्स जब पढ़ाते हैं, सेमिनार प्रेजेंटेशंस करते हैं, इन द बिगनिंग, आप भी हो सकता है एज बिगनर टीचर, आपको भी शायद ये प्रॉब्लम आई हो.
आई कांटेक्ट रखना बहुत मुश्किल होता है। आप अपना फर्स्ट सेमिनार याद करो या अपना फर्स्ट लेक्चर याद करो, आपके सामने 60 की क्लास बैठी है, आपको समझ नहीं आती कि इनको देखूं या दीवार को देखूं या बोर्ड को देखूं। तो वो जो आई कांटेक्ट आप मिस करते हो, दैट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो स्टूडेंट कहते हैं इस टीचर को तो कॉन्फिडेंट तो है नहीं है, चलो कुछ परेशान कर सकते हैं हम। सो फॉर मैनेजिंग क्लासरूम सो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी स्टूडेंट सेमिनार्स की मैं बात कर रही थी। स्टूडेंट जब सेमिनार में प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले वो स्टूडेंट से नजर मिला के नर्वस हो जाते हैं, कहते हैं नहीं छत पे देख के तो मैं सेमिनार दे सकता हूँ, पर मेरे को अपनी क्लास के क्लासमेट्स को देख के सेमिनार देने के लिए मत कहें। नाउ ये ऐसी चीज नहीं है कि आपका स्टूडेंट ये नहीं कर सकता, ओनली थिंग इज यू हैव टू हेल्प देम। मेरे पास एक ऐसी कोई स्टूडेंट आया कि कहते कि सेमिनार देना है, बट आई कांटेक्ट जो है ना वो तो मुसीबत है। मैं आई कांटेक्ट करता हूँ तो मेरे को भूल जाता है मैंने क्या बोलना है। सो मैंने कहा ओके, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप उस पे करो और फिर अपना आई का कांटेक्ट सबको घुमा दो। आई कांटेक्ट डजंट मीन कि आप एक को स्टेयर करोगे। आई कांटेक्ट मीन आपने उसको इन्वॉल्व करना है, मतलब ऐसे लगना है कि सारी क्लास को लगे कि हाँ आप सबको देख रहे हैं, तो वो कोई कहीं पे फिक्स नहीं होता है। So you have to take care with this. So eye contact, they are expressive, telegraphing joy, sadness, सब कुछ मैंने कहा eyes बता देती हैं. So teachers they can use it to manage classroom also. जैसे कि who is attentive, eyes से पता चल जाता है कौन attentive है. Eyes बता देती हैं who is prepared to answer a question. Can you give me example? क्या आपने कभी ये मीन्स एक्सपीरियंस किया है कि आंखों से आपने देखा हो कि कौन सा स्टूडेंट आंसर देने के लिए तैयार है? हाथ नहीं खड़े करने हैं, आंसर देने के लिए रेडी है, जस्ट ये जो आंखें बता रही हैं। आपने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है तो कैसे किया है? They do not look at us. हाँ जी, वो हमारी तरफ देखते नहीं है, नीचे देखते हैं साइड वेरी गुड, वेरी राइट। वो आपसे नजर नहीं मिलाते हैं। जिसको क्वेश्चन का आंसर आता है वो बार बार आपकी नजर के आगे करता है कि मुझे देखो। उसको नहीं आता वो इधर उधर देखता है, और आप अगर कह भी देते हो ना हाँ जी आप बताएं, वो कहता है इसको कहा है मैडम, इसको कहा है, तो वो कहता है कि मेरे से वो नजर नहीं मिलाएगा आपसे। देन हु हैज कंप्लीटेड होमवर्क असाइनमेंट, जिसने होमवर्क असाइनमेंट की है वो बड़े शान से कहेगा कि हाँ जी मेरे से पूछो। जिसने नहीं किया है वो फिर क्वेश्चन के आंसर की तरह नजर चुराएगा। वेदर द स्टूडेंट इज टेलिंग लाई, बोलता तो है नहीं सर मैंने सच में किया था, आई स्फीयर मैंने सर किया था, और आईज बता रही होती हैं कि ये जो स्फीयर है बाय गॉड है वो आईज के साथ नहीं जा रहा होता है। सो आई कांटेक्ट जो है दैट टेल्स नंबर ऑफ थिंग्स, अगेन वही बात कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट। आप कहते कुछ और हो और वर्ड्स का आपका मीनिंग सारा कुछ बदल रहा है। देन कम्स पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में काफी कुछ आ जाता है। से हाउ नॉट व्हाट यू से। जो व्हाट है दैट इज द वर्बल, राइट, और हाउ वर्बल नहीं है। हाउ इज नॉन वर्बल। जैसे मैंने कहा ना कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस वर्ड तो वर्बल था पर किस तरह कहा गया, पैरा लैंग्वेज, दैट हैज चेंज द मीनिंग। कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, वर्ड वही रहा, तो पैरा लैंग्वेज ने मीनिंग चेंज कर दिया। सो स्पीच बिहेवियर takes care of vocal tone, speed, pitch, number, length of pauses, voice की quality क्या है, and all these things they speak of the para language. People talk faster when they are excited or anxious. जब आप खूब जोश में होते हैं ना फटाफट बोलते जाते हो जब खूब एक्साइटमेंट होती है। जब दुखी होते हो तो क्या करते हो? Anybody who can tell कि जब एक्साइटमेंट होती है तब तो आप फटाफट बोलते हो, जब आप परेशान होते हो दुखी होते हो तो कैसे बोलते हो? जब परेशान होते हो और दुखी होते हो तो कैसे बोलते हो?
Let me ask any person from Jammu. हाँ जी, जब परेशान होते हो तो कैसे बोलते हो? तभी फास्ट बोलते हो? जब दुखी होते हो तो कैसे बोलते हो? बड़े जोश से बोलते हो क्या तब क्या होता है? तब ड्रैग करते हो आप आवाज को, धीरे बोलते हो, बड़े हाँ हो गया था, ऐसा ही था, राइट? तो वो जो आपकी वॉइस क्वालिटी में सब कुछ आ जाता है. People tend to talk slower when they are depressed, disgusted or tired. थक जाते हो तो भी कहते हो ठीक है, बस चुप, ज्यादा नहीं बोलना चाहते आप. सो पैरा लैंग्वेज मैसेजेस मैं कुछ लेके चलती हूँ and just I will share what type of effect is there on this speech. So when we are angry or excited, then we become say the same thing in a rapid and in high pitch. मुझे याद है हमारे एक टीचर होते थे, जब उनको गुस्सा आता था तो सारा क्लासरूम बोलता था, इतना ऊंचा वो बोलते थे, और फिर उनको ब्लड प्रेशर हो जाता था, सांस चढ़ जाता था. But it is like that, जब उनको गुस्सा आ रहा है तो. Then I just shared when you are bored or feeling down, तो फिर आप वो जोश से नहीं बोलते हैं, वैसे हाई पिच में नहीं बोलते हैं. Then you become monotone, slow, धीरे धीरे बोलते हो, like that. Then you are defensive, तो कब कैसे बोलते हो आप? आपने कोई काम किया नहीं, या आपने कोई वो बात ऐसी की नहीं या कही नहीं, फिर तब आप जब डिफेंसिव मोड में होते हो तो किस तरह बोलते हो? डिफेंसिव मोड में होते हो तो कैसे बोलते हो? एनीबॉडी फ्रॉम एनी सेंटर? हाँ जी, एनी पर्सन फ्रॉम एनी सेंटर कैन शेयर. आर यू गेटिंग मी? मेरी आवाज तो क्लियर? डिफेंसिव होते हो तो क्या करते हो एकदम से? मैंने हिंट भी दे दिया है. आप एब्रप्टली बोलते हो, मैंने तो नहीं किया था, ठीक है? अब वो चीज नहीं रहती है कि हाँ आप आराम से पढ़ा रहे हैं या हाई पिच, वो चीज नहीं होती है, मैंने तो नहीं किया था. एब्रप्टली आप होते हो कि आप डिफेंस मोड में चले जाते हो. एंड आप स्टूडेंट भी कई बार करते होंगे. वेरी द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, सो डोंट ऑलवेज यूज ए लाउड वॉइस टू गेन अटेंशन. कई टीचर्स होते हैं खूब ऊंचा बोलते हैं, मैंने सुना है टीचर्स की वॉइस काफी हाई पिच्ड हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी क्लास का साइज काफी बड़ा है तो आप जो ऊंचा बोलने की वो एक बार आदत ही पड़ जाती है बहुत ज्यादा. सो अपनी जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें अप डाउन लाओ कुछ. That this thing might have been discussed by the in oral communication also. Then is protect your voice from the strain. आपकी वॉइस का आप एक घंटे का लेक्चर तो लेते हैं सारे, आपकी वॉइस में कभी स्ट्रेन आया है? पढ़ाते पढ़ाते आपको लगा हो कि वॉइस में कहीं पे कुछ ऐसा होता है? अगर होता है तो आप क्या करते हैं? अगर नहीं होता तो आप वाकई ही क्या कहूँ मैं, बड़े सही से लोग हैं, मतलब बिल्कुल वॉइस स्ट्रेन नहीं आता. एनीबॉडी? यस, एनीबॉडी फ्रॉम बीकानेर? हाँ जी, कभी स्ट्रेन, गला सूखा है अभी आप पढ़ाते पढ़ाते? गला सूखता है कभी? नहीं सूखा कभी भी? थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है आपकी. माइक यूज करेंगे तो वी विल बी एबल टू हियर यू. हाँ जी मैडम. We usually drink water. हाँ जी, could not get you, sorry. Ma'am, we usually drink water in between. वेरी गुड, वेरी गुड. सो जब भी आपको लगे कि गला सूख रहा है, there's no harm if you take water. मैं भी पानी पी लेती हूँ. Avoid situations that cause voice strain. अब voice strain होता क्यों? एक तो है जब
आपका सेशंस ज्यादा बढ़े हैं तब हो सकता है वॉइस। और जब आपका सेशंस ज्यादा बड़े हैं कैन टेक कीप वाटर विद यू। या होगा वॉइस स्ट्रेन तब जब आप सारा लेक्चर बहुत हाई पिच में देते हैं। सो अगर आपकी ऐसी हैबिट है दैट यू आर गिविंग योर लेक्चर्स थ्रूआउट द लेक्चर इन हाई पिच, देन टेक केयर कि वो चीज उसको अवॉइड करना, कहीं पे अपनी वॉइस को लो करें। एंड आई वुड से इंक्रीज योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। वो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और आपकी क्लास मैनेज रूम के लिए भी अच्छा है और एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आपने पॉज दिया, किसी स्टूडेंट को कहा, तो आपके थ्रोट को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। सो it's not that student participation is good for active learning and for their better understanding, it is also good for you. Reduce the influence of potential vocal irritants. जो आता है ना गला साफ करना, बार-बार that is distracting. तो उसके लिए आप पानी रख सकते हैं। Then we come to the pitch. Pitch पे मैं ज्यादा नहीं लूंगी because I think my colleague who talked about verbal communication that these things might have been touched. Monotone voice नहीं होनी चाहिए, जहाँ कहते हैं ना हाई पिच नहीं होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल मोनोटोन एक ही लय में, ऐसा हुआ था आप एक ही टोन में बोलते जा रहे हैं, that too should not be there. Then comes the same word value. अब सेम वर्ड को दोहराने की आदत होती है। दिस अगेन आई थिंक दैट माइट हैव बीन कवर्ड। अब देयर आर वोकलाइजेशंस। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं। वन आर दी वोकल कैरेक्टराइजर्स, वोकल क्वालिफायर्स एंड वोकल सेग्रीगेटर्स। ये आप अक्सर यूज करते होंगे। वोकल कैरेक्टराइजर्स क्या है? हंसना कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। सांस लेना, ओह, आप जब स्टूडेंट छाया कर लेते हैं ना, इसका मतलब है बस करो पढ़ाना, आप बहुत पढ़ा लिया आपने, राइट। सो विस्पर करना, ये जो चीजें हैं दे कैरेक्टराइज वोकल कैरेक्टराइजर्स हैं। देन देयर आर वोकल क्वालिफायर्स, हाई लो पिच, ये वोकल क्वालिफायर्स हैं। लास्ट इज वोकल सेग्रीगेटर्स। इसका मतलब है यू आर लिसनिंग, यू कंटिन्यू द टॉक, ओ यू आर विद द लिसनर, so these segregate what you are saying. Say they are used for different purposes, but they are not part of the verbal communication. They are just the signals that say that okay, you continue the talk, oh this happened. You don't say that this happened, oh, just saying oh conveys okay this happened, like this. Then comes the proxemics. Anybody who will tell me the meaning of this proxemics? क्या होता है proxemics? हाँ जी, संदीप बताएंगे उदयपुर से। संदीप, आपकी हमें आवाज नहीं आ रही है। Okay, ma'am. Am I audible now? Yes, now you are audible. Proxemics means what you are performing through your body language is in contrast with what you are saying. Okay, let me just clear. Proxemics, these are the personal space orientations. These are your proxemics. कितना किसी के करीब आना allowed है, and this will depend upon sex, age, status, cultural orientation. आपका स्टेटस की बात आती है, बॉस के साथ, अपने हेड के साथ, टीचर स्टूडेंट के साथ, डायरेक्टर का फैकल्टी के साथ, एक स्टेटस का जो डिफरेंस है वो प्रॉक्सिमिक्स है। तो वो आप थोड़ा दूरी रखते, वो दूरी इन द सेंस की भी एक स्टूडेंट के साथ आप जितना उस क्लोज पे आ सकते हैं, उतना आप बॉस के साथ उस डिस्टेंस पे ज्यादा होगा। सो स्टेकिंग आउट ए पर्सनल स्पेस वी डोंट वांट इन्फ्रिंज्ड अपॉन। हर पर्सन का एक पर्सनल स्पेस होता है, कोई उस टेरिटरी में किसी दूसरे को आने नहीं देना चाहता है। दैट यू हैव टू टेक केयर। देन इज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है, दिस डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट। यू मे बी हैप्पी, afraid, stressed, confused. That will depends upon the comes with the surroundings. Now what are the factors? Furniture.
आप ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जिसपे एक नेल लगी हुई है, विच कैन एनी टाइम आपके को लग सकती है, या आपको आपका कोई कपड़ा डैमेज कर सकती है। सो आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे। इंटीरियर डेकोरेशन, कमरा बहुत अच्छा है, एमबी बहुत अच्छी है, तो आप कहते हैं चलो यहाँ 10 मिनट और बैठ जाते हैं। लाइटिंग कंडीशंस, डिम लाइट है और आप पढ़ाए जा रहे हैं, स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रहा है। किसी स्टूडेंट के लाइटिंग कंडीशन, किसी स्टूडेंट की ग्लेयर पड़ रही है। सो दीज थिंग्स आल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशंस। कलर्स, डार्क कलर का क्लासरूम है, the light colors goes with the classroom height, with the that are more appropriate for the classrooms. Temperature, सर्दियों के दिन है, ठंडा सा कमरा है, तो जो स्टूडेंट है they will be uncomfortable in listening to you. Likewise in summer, or in rainy season, when lot of humidity is there, non-verbal communication आपको ये बताएगी कि नहीं बस करो पढ़ाना, like that. So such type of things are there. Then the artifacts, मैंने एक example दिया, artifacts relates to the how you dress up. कैसे होना चाहिए टीचर को ड्रेस अप? Anybody? First I take a teacher and then I will say that say you are to appear in the interview, then what type of artifacts should be followed. Let me first of all talk about the teacher. आप टीचर क्या सोचते हैं आपको कैसे ड्रेसअप होके आना चाहिए? उदयपुर, अगेन आई स्टार्ट विद उदयपुर। संदीप से नहीं पूछूंगी, आप मैं जयप्रकाश से पूछते हैं। प्लीज आप क्या आइए। Yes, ma'am. All right. कैमरा करिए। चेयर से How the teacher should dress up in the class? आप टीचर है ना? कितने साल हो गए आपके जयप्रकाश पढ़ाते हुए? मैम 4 years हो गए। 4 years हो गए। तो what is your feeling? का आपके यहाँ कोई ड्रेस कोड है फैकल्टी के लिए? Yes, ma'am. क्या? मैम ब्लेजर्स। कौन सा? ब्लेजर मैम। ब्लेजर अब तो नहीं पहना हुआ आपने? नहीं मैम, मैं अभी न्यू ज्वाइनिंग मैम, कॉलेज चेंज हुई मेरी। अच्छा, ओके, कॉलेज चेंज किया, ओके। तो कैसे ड्रेसअप होना चाहिए आपका? अगर कॉलेज नहीं लगा दी है ड्रेस फिर तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। शूज के लिए भी कोई है? ये सिर्फ ब्लेजर ही है? मैम ओनली फॉर ब्लेजर। हाँ जी, ओनली ब्लेजर, ओके। अदरवाइज जीन्स और स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हैं आप? नो मैम, स्पोर्ट्स शूज नॉट अलाउड। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ ना, तभी मैं कह रही हूँ कि आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं। ओके, डिपेंड अपॉन एकेडमिक एनवायरनमेंट इज देयर इज। एनवायरनमेंट, गुड। तो आपका एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है ना, तभी तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैम थैंक यू जयप्रकाश। आई कम टू बीकानेर। बात करना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बीकानेर। Who will like to share artifacts? What type of artifacts the teacher should observe here in the classrooms? Ma'am, the dress should be decent and it should नाम be बताएंगे formal. बेटे? नाम बताओगे आप? Formal wear should be. हाँ जी, I am Anshu Sharma. अंशु जी। Anshu Sharma. अंशु शर्मा। हाँ जी। हाँ जी, अंशु शर्मा फ्रॉम जम्मू। From Bikaner, ma'am. Bikaner. बीकानेर से। I'm from Bikaner. हाँ जी, अंशु आप बताओगे जरा टीचर को किस तरह ड्रेसअप होना चाहिए? आप अपने फीमेल Ma'am, टीचर the dress should be formal. Ma'am, it should be formal and Okay. decent. It should be formal It should be formal and और decent. क्या कहना चाहेंगे? Decent, ma'am, decent. डिसेंट। तो डिसेंट के तो कई मीनिंग हो सकते हैं। ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। वो वाले क्या कहते हैं? जम्मू में भी एक मैडम शर्मा है, कैन शी शेयर विद अस? हाँ जी। Yes, ma'am. I think the dress should be formal. The makeup should be light. Makeup should be light. Very good. This is very important. This is very important. And what about if the student is appearing in the interview? How the student should dress up?
Ma'am, आपने टीचर का बहुत सही बता दिया, वेरी गुड। the student should also be. तो किस तरह से करना है? Say some female candidate is going to appear in the interview, तो उसको कैसे करना चाहिए? Can she wear jeans? She should be wearing some formal Indian dress or maybe a Western dress, light makeup, and should carry a bag in which her your credential certificates are there. Light makeup, no jewelry, formal shoes. No jewelry की नहीं बात है, jewelry should be light. Right. Okay, so let's just see. Very thank you, Madam Sharma. So artifacts, they include clothing, jewelry, personal belongings, accessories, and the like. So these things communicate about the level, educational level, social position, sophistication, economic background. जब आप बड़े हाई ब्रांड से कपड़े पहन के आ जाते हैं, that shows that tells the status also. So important part of first impression. जो कोई एंटर करता है, वाह भाई इसकी ड्रेस देख के कमाल हो गया, so they become part of the first impression. आप बाद में बोलना शुरू करते हैं, पहले ही वो बोल देते हैं. Okay, clothing में आ जाता है, wear clothes appropriate to the occasion. I think one among you said like this, so that's the right answer. Consistent to the, that should be consistent to the institute norms. अगर आप institution में, जैसे कि उदयपुर उन्होंने कहा कि नहीं हमें एक जैकेट मतलब ड्रेस कोड है, then you have to go by that dress code only. If there is no dress code, then you have to think that how the teacher should look like. So jewelry, lot of jewelry, rightly said by the female faculty, lot of jewelry should not wear. मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहूँगी, jewelry जो है ना, that is going to affect the male also. चाहे कोई बच्चा इंटरव्यू में क्लियर होने जा रहा है या आप क्लास में आते हैं, मेल और फीमेल, इवन मेल जो है, कई बार आपने देखा होगा कि कान में, एक कान में कोई झुमका डाला होता है, किसी ने टॉप्स डाले होते हैं, क्यों दे स्टार्ट फॉलोइंग the heroes of the films. So ये जो टीचर का है वो नहीं है, and when the student is appearing in the interview, right, तो वो कोई फैशन शो नहीं है. So ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए. परफ्यूम अगर लगाना है तो it should be very light one. कोई ये नहीं है कि बहुत आपके पहुंचते एक बहुत सुहावना अच्छी सी फ्रेग्रेंस सबको तीखी सी दिखाई मिले, that should not be there. Lipstick, light color, eyelashes should not be used. So beauty aids, such type of things, other beauty aids should not be. बहुत लंबे से नाखून, ठीक है, stylish nail polish, these things don't go with the teacher or with the candidate who is appearing in the interview. So then come the silence. आपने कभी साइलेंस में बात की है? कहीं ऐसा ओकेजन हो जहां आपने बात की without choosing any word, you were silent and you communicated. कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हैं? Anybody, any center? हाँ जी. गुरप्रीत से पूछते हैं फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. हाँ जी गुरप्रीत, कभी साइलेंस में बातचीत हुई हो, आप चुप रहे पर बात की? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटे. मैम कुछ ऐसी जगह जहाँ पे लाइक in a conference when someone is delivering the message and we are listening to that person very quietly and we are reacting to our face, not by speaking a word. कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई बात करता है, आप उसका जवाब नहीं देते, आप चुप रहते हो फिर भी. Yes, ma'am. तो ये जो साइलेंस जो है वो बोलती है, दैट शोज कि आप उससे बात नहीं करना चाहते हो, सोचते हो कि मैंने तो जवाब ही नहीं दिया. और साइलेंस कई बार बड़ा अजीब सा डबल मीनिंग देती है. आप कहते हो आप इससे सहमत हो, दूसरा पर्सन चुप है,
आप कंफ्यूज हो कि वो सहमत है या नहीं है, बिकॉज इट इज 50% यस 50% नो। आप कहते हो ऐसा सहमत नहीं है, वो कहते नहीं मैंने तो नहीं कहा ये। सो साइलेंस जो है दैट कैन कम्युनिकेट ऑकवर्डनेस। गुस्से में भी आप बात करनी छोड़ देते हो, आपने किया होगा तभी मैंने आपसे पूछा है। जब आपको गुस्सा आता है किसी पे, ठीक है, और आप गुस्सा वहां निकाल नहीं सकते हो तो आप चुप रहते हो। दैट शोज कि आपको पसंद नहीं आई है बात उनकी। एंड एट टाइम्स ऑफ व्हेन यू आर थॉटफुल, आप कुछ सोच रहे हैं, दूसरा पर्सन बोले जा रहा है, आप कहते हो नहीं मेरे को सोचने दे, सो यू आर साइलेंट। सो ये डिसकन्फर्मिंग भी है, राइट। कोई आपके साथ बैठा है और वो चुप रहता है तो आप चाहते हो बोले बोले, वो बोल नहीं रहा, दैट सिचुएशन बिकम्स वेरी डिसकम्फर्टिंग कि क्या बोल ही नहीं है। मान लो आप क्लास में जाते हो, चुप करके खड़े रहते हो काफी देर, तो स्टूडेंट आपको देख के कहेंगे कि क्या क्या हो गया है जिसको। सो दैट बिकम्स a discomforting type of situation. Then I come to the touch in the classroom. Oh, this is very dangerous. Let me again hear from you. What are your views about touch in the classroom? Let me first of all go to University of Jammu. What you understand by touch in the classroom? Yes, anybody? And what type of permissible limits for touch are there? कभी टच नहीं करते? नहीं, ये साइलेंस तो बड़ी गड़बड़ है। अभी अभी तो हम साइलेंस से बाहर आए थे, साइलेंस जोन से तो हम बाहर आ गए हैं भाई। बोलो कुछ आप। ओके, लेट मी गो टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाँ जी, anybody who will like to react on this, will like to give some views on that? हाँ जी, नहीं, ओके। We move to उदयपुर। संदीप बताएंगे उदयपुर में। He or she is angry टच and something serious must have happened with the faculty. Personal problem. नहीं, टच टच आप स्टूडेंट को टच कर सकते हैं? स्टूडेंट को टच नहीं कर सकते मैम। नहीं कर सकते हैं, तो यही तो बड़ी सिंपल सी चीज पे पूछ रही हूँ। टच का मतलब ये नहीं कि आप उसको स्लैप करो, टच डजंट मीन दिस थिंग, राइट। Actually, touching, holding, and backpatting can be favorable, can be unfavorable. Younger classes में बच्चों के साथ this thing is favorable. Children, आप पैट करते हो, वाह वेल डन, तो आप साथ में उसको शाबाश दे देते हो बैक पे, that's a permissible type of touching. But when you move to the higher classes, touching female students by male teachers of higher classes is highly inappropriate and objectionable, and this type of thing is for almost all circumstances. So ऐसा आप कभी मत करिएगा, right? Higher क्या मैं कहूँगी, even the secondary classes, this thing is not this should not be done by the opposite sex. So take care of this, otherwise you may have to see the court also or some news in the newspaper. Okay, then we come to the use of time in the classroom. Again, a non-verbal type of thing. I'll give you 1-2 examples and then I will like to know from you. Time for student attentiveness in a period. कितना होता है? Anybody? Student कितनी देर तक क्लास में बिल्कुल अटेंटिव बैठे होते हैं? आप अपना ही बता दो, आपका अटेंटिवनेस टाइम कितना है? 25 minutes. 25 minutes. Okay. Anybody else? ये तो हमें उदयपुर से सुनाई दिया, बीकानेर वाले क्या कहते हैं? Ma'am, almost half an hour. Half In the an hour. morning,
इन द मॉर्निंग ज्यादा देर अटेंटिव रहता है. In the morning, we are more attentive. Okay, so let about Jammu. What about sorry this this Chandigarh University? Chandigarh University वाले क्या कहते हैं? And it at least 25 minutes. The students अपना attentive रह सकते हैं, but it also depends on. Good, Prit. Studies have shown that 15 to 20 minutes attentiveness सबसे ज्यादा रहती है. Point is, इसके बाद आप क्या 45 मिनट्स पढ़ाएंगे नहीं? क्या करेंगे आप 45 मिनट्स फिर? वो तो हो गया बाद में. Is it like that? आप उसके बाद कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे. That's why we say have more of student participation. कोई उनको एक्टिविटी दे दो, कोई उनको न्यूमेरिकल दे दो, कुछ वो करेंगे ना तो दोबारा अटेंटिव हो जाएंगे. Then you give them another dose like that. If you want that there is more of learning. Okay. Amount of time spent on a certain topic. अगर आप मान लो मैं कहती हूँ आपका सेशनल एग्जाम से पहले आप कुछ पढ़ा रहे हैं और आप काफी लंबा टाइम उसको किसी टॉपिक को पढ़ाते हो और एक टॉपिक है जिसको आप किसी क्लास के एंड में हार्डली 3-4 मिनट आप बात करते हो और पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन दे देते हो. ये कराया थोड़ा सा था, ठीक है. सो देयर इज नो verbal communication here, but just the time you spent on teaching a particular thing that conveyed to the student that okay, इतना पढ़ाया है तो इतने नंबर का ही आना चाहिए था. So this also conveys things. Time given to student for responding to question. लो ये तो अब आप ही बताएंगे. जब आप क्वेश्चंस, आप में से कितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं? चारों सेंटर्स के लोग क्वेश्चंस, टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से? डेली पूछते मैडम. पूछते हैं. वेरी गुड. अब आप कोई क्वेश्चन पूछने के बाद क्या करते हैं? जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन बोला और मैं साथ में कहती हूँ हाँ जी जयप्रकाश जी आप बताओ. इज दैट द राइट वे? Yes ma'am, it is personal one-to-one interaction. One-to-one interaction. So आपने नोट नहीं किया मैंने क्या कहा है. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है जयप्रकाश बताओ. मेरा ये ऐसा क्वेश्चन कहना ठीक है? Ma'am, directly we can ask the student who are attend the lecture properly. तो नहीं, वो तो उसकी इम्प्लीकेशन हो गई. मैंने कहा है कि मैंने क्वेश्चन बिना पॉज किए, मैंने जब कहा ना कम्युनिकेशन क्या है और साथ ही कह दिया जयप्रकाश बताओ, उसको तो थिंकिंग टाइम ही नहीं दिया आपने. Yes ma'am. सो दिस पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्टूडेंट को मान लो पार्शियल आता है, वो खड़ा हुआ, उसने जवाब नहीं दिया, आप बैठ जाओ. वो कहता है मेरे को टाइम तो दो सोच के बोलने का. सही बात है. ठीक है. क्या आप वो देते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बिल्कुल नहीं देते, पॉज बिल्कुल नहीं देते हैं, इसका मतलब यू आर हाईली इम्पेशेंट टीचर. उसकी गलती नहीं है वहां पे, आपकी गलती है. सो बी केयरफुल फॉर द टाइम विच यू आर गिविंग टू द स्टूडेंट फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द आंसर. दो इट्स नॉट रिलेटेड विद दिस लेक्चर, बट आई विल से कि जब अभी आपका स्टूडेंट कोई क्वेश्चन का आंसर देता है, बी स्पोर्टिव, बी एनकरेजिंग. जैसे वो अगली बार हिम्मत करे आपके क्वेश्चन का जवाब देने की. और आप सच माने, अगर आप उसको एनकरेज करेंगे वो अगली बार 2 चीजें पढ़ के आएगा कि सर पूछेंगे तो थोड़ा बता देंगे, हमको भी आता है. सो ऐसा एनवायरनमेंट आप अपनी क्लासरूम में लाए. नॉट गुड टू इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल एट द एंड ऑफ द क्लास पीरियड. दैट शोज एंड ऑफ द क्लास पीरियड का मतलब है कि आप अटेंटिवनेस वो सब खत्म हो रही है, आप उसको नया टॉपिक शुरू कर देते हो तो वो कहते हैं अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा. द अनस्पोकन मैसेज टू द स्टूडेंट कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ऐसे ही लेंगे हम. तो नया टॉपिक कभी एंड में शुरू नहीं करना. देन द टाइम ओरिएंटेशन. आप में से कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठने वालों में हैं? कितने लोग हैं? लेट मी स्टार्ट विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. कितने लोग हैं जो अर्ली राइजर्स हैं? नहीं है, लेट वाले हैं. ओके, लेट मी गो टू द अदर सेंटर. यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कितने लोग जल्दी उठते हैं? एक दूसरे को देखो, अपना बताओ. आप 2 1 2 2 3 3 लेडीज हैं ज्यादा. ओके, देन आई गो टू बीकानेर.
बीकानेर में कितने लोग हैं देखिए, कितने लोग बहुत जल्दी उठने वालों में हैं? वाह, यहाँ तो सारे जल्दी उठ रहे हैं। क्या कहने हैं? ओके, लेट मी गो टू उदयपुर। उदयपुर, यहाँ भी बहुत, क्या हुआ, राजस्थान में जल्दी उठते हैं? ओके, थैंक्स ए लॉट। अब आप बताएं कि अर्ली राइजर अच्छा होता है या लेट राइजर अच्छा होता है? पहले थ्योरीज ये आती थी कि अर्ली राइजर, अब भी कई लोग काफी विश्वास करते हैं कि अर्ली राइजर इज द बेस्ट थिंग। आप जिस वक्त अटेंटिव ज्यादा हो, दैट इज द बेस्ट टाइम। टाइम ओरिएंटेशन ये कहती है, स्टडीज ये कहती है कि जो भी आपका फ्रेश टाइम है, कई लोगों का रात का मतलब होता है कि जैसे 2 बजे तक पढ़ा दो, 3 बजे तक पढ़ा दो, इट इज गुड। पर कई लोग होते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठ के ही करेंगे। कईयों को नींद ही नहीं आती जब तक रात को काम खत्म नहीं हुआ है, वो सोएंगे, वो तब तक जागते रहेंगे जब तक काम खत्म नहीं हो गया। सो both the times are good. It depends on what you have adopted in your life. Then comes the sitting dynamics. I have seen many times we have courses here, और front bench खाली होते हैं, लोग पीछे जाके बैठ जाते हैं। आपके साथ भी कई बार होता होगा क्लासेस में। और as you might have observed, there are certain students who will occupy the same positions daily. जो फ्रंट वाले हैं वो फ्रंट वाले रहते हैं, मिडल वाले रहते हैं, और एंड वाले जो बैक बेंचर्स हैं वो डेली बैक बेंचर्स ही होते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस थिंग? एनीबॉडी, एनी सेंटर? किसी ने ये चीज ऑब्जर्व की है क्लासेस में? यस मैम। यस मैम। हाँ, देखा है। आप कौन से बेंचर रहे हैं? ओके, तो आई विल नॉट यूज दैट थिंग एज सच इन द एग्जांपल। आप बैक बेंचर रहे हैं या फ्रंट बेंचर? मैम मिडिल बेंचर। मिडिल बेंचर रहे हैं। ओके, हम देखते हैं ये साइकोलॉजी क्या कहती है। फ्रंट बेंचर जो होते हैं, दे लाइक द एक्शन एंड डेट कॉन्शियस, दे लाइक टू बी इन द आईज ऑफ द टीचर। बाहर टीचर हमें बाहर देखें, ठीक है, हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, हमें आता है, हमसे पूछो क्वेश्चन, लाइक दैट। जो होते हैं बैक बेंचर्स, वो चाहते हैं कि हमें ना देखो, हम किसी की अटेंशन में, किसी की उसमें ना आए, थोड़ी जो शरारत है वो कर सकें, ठीक है। पीछे बैठेंगे कि एक सिक्योर सी जगह है, ना किसी को दिखाई देंगे, आराम से अपना। देन बाय विंडो, अगर कभी कभार वो जगह मिलती है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। पर जो रेगुलरली वहां बैठता है, दे आर मोर ऑफ डे ड्रीमर्स। वो कहते हैं बाहर भी झांक झूंक लेंगे, थोड़ी नींद खुली रहेगी। So they are daydreamers type। बाहर देखा, कुछ और सोचने लग पड़े, तो क्लास में क्या हो रहा है वो ज्यादा बॉदर नहीं करना पड़ेगा। Then there are certain students who will sit near the door। क्यों? क्योंकि भागना आसान होगा, जब टीचर बोर्ड पे लिखेगा खिसक जाएंगे हम। So that's also the tendency। Then there are middle type, जो अभी जयप्रकाश जी ने कहा, काफी लोग तो मिडल में ही होंगे ना। So they like to blend into the crowd and possibly are shy। I don't know whether Jayaprakash is like that or not। पर जो मिडिल में होते हैं वो होते हैं क्राउड के साथ मिल गए, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा अटेंशन में कौन आता है? या तो फ्रंट वाला आएगा या बिल्कुल पीछे वाला आएगा। जो मिडिल पोर्शन है वो सारा ही एक क्राउड के साथ चला जाएगा। सो दे डोंट वांट कि वो बहुत ज्यादा किसी की अटेंशन में आए। देन कम्स द हैंडशेक। So hands not damp or clammy। हाथ अपने के साफ होने चाहिए हैं। फर्म ग्रिप, पर इतनी फर्म भी ना हो कि आप हड्डी पसली तोड़ दो दूसरे की। हाँ, इट शुड नॉट बी बोन क्रशर। थंब एंड, ये कई बार होता है इंटरव्यूज में, पैनलिस्ट के साथ कई बार स्टूडेंट को, कैंडिडेट को मिलानी पड़ती है, आपको अपने बॉस के साथ कई बार मिलानी है। सो बी केयरफुल अबाउट, बिकॉज दीज इवन द हैंडशेक स्पीक्स ऑफ speaks what you want to say। So thumb and forefinger, ऐसे हल्का सा आधी उंगलियां करके, not a good right type of handshake, like this। Maintain eye contact during handshake। आप handshake तो इधर कर रहे हैं, देख कर रहे हैं, that's not the right way to handshake। आप जब handshake करते हैं, eye contact रखें, that shows that you are confident and you really want to have they have the positive type of relationship with the other person।
गिव ए कपल ऑफ शेक, यानी एक मिलाया और छोड़ दिया। अगर मिलाना है तो 1-2 बार करना है, पर ये भी नहीं है कि आप 10-12 बार करते चले जाओ, छोड़ो ही ना, दैट टू इज गिविंग रॉन्ग सिग्नल। और अगर आपके पास कोई आता है और आप हैंडशेक करते हैं तो ये नहीं कि बैठे बैठे ही कर देते हैं, दैट इज ए डिसरिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। आप करना है तो आप खड़े होके अच्छी तरह करिए, नहीं तो मत करिएगा, आप सीधा कहो हाँ जी आइए बैठिएगा, बैठ के हैंडशेक नहीं होता है। So just analyze how is your handshake. अब ये देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। व्हाट डज दिस से? कुछ ना बोल के बोल रही हैं? नहीं, आप कुछ नहीं कहना चाहते इसके बारे में? ओके, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? क्या एक्सप्रेशन है ये? सरप्राइज। हाँ, क्या हो गया? And with this, I stop my interaction and give you time to question.